Okay, students, yesterday we started with the revision of lesson 5, separation of substances. Table you have made already, right? Yes. First method that we have to start is hand picking. Bache, first of all, we have to see which type of mixture is here, right? If the mixture is solid in solid, as we did in solid, four methods can be there. Which are the four methods? Hand picking, threshing, winnowing, एंड सीविंग. ये फोर मेथड्स कल हमने लिखे थे. इफ द मिक्सचर इज हैविंग बोथ द सॉलिड कंपोनेंट्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द हैंड पिकिंग. बच्चे, हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? हैंड से पिक करना, राइट? सो हम कौन से कंपोनेंट्स पिक कर पाएंगे? Which are different in size, which are visible to eyes, which have different color, and number 4, they should be small in quantity. तो हैंड पिकिंग के लिए क्या चार कंडीशंस हैं? कंपोनेंट्स शुड बी विजिबल टू आईज, राइट? नंबर 2, दे शुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, दोनों के साइज डिफरेंट हो. Number 3, they should be of different color, and number 4, they should be in less quantity. अगर बहुत ज्यादा है, it is not possible to do hand picking, right? So students, in case of hand picking, the example we give is we have to separate stones from dal or rice, right? Then comes threshing. What is threshing? In this case, what happen is the grains are separated from the stalks. Grains जो हैं, दाने जो हैं, they are separated from the stalk. How? The stalks are tied in bundles and they are beaten hardly on the hard floor or ground. As a result, grain gets separated. Nowadays, machines are there which are known as threshers, right? आजकल ये काम करने के लिए threshers और combines आ गई. Okay? Then comes winnowing. Winnowing क्या है? अब हमारे पास दाने आ गए, but they have husk on it. इन दानों के ऊपर अभी husk है. To separate out the husk from the grains, winnowing method is used. To use winnowing method, we must see that one component is heavier and the other is lighter. एक component heavy होना चाहिए, दूसरा light होना चाहिए, right? Why? Because air is blown. हवा चलाई जाती है, तो जो lighter component होगा, it will be blown away, and heavier component, it will remain there, right? Is that clear? This is winnowing. Next आ गया sieving. Sieving क्या है? Sieving is to sieve the component. In this case, one component should be smaller in size than the sieve. One should be larger in size than the sieve. For example, you have to separate the bran from the wheat flour. आटे में से धान निकालते हो ना, छानते हो ना आटे को, तो वो जो फ्लोर के पार्टिकल्स है, व्हीट फ्लोर के पार्टिकल्स हैं, वो सीव में से पास कर जाते हैं और जो बड़े वाले हैं वो ऊपर रह जाते हैं. दिस इज सीविंग, राइट? और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपने देखा होगा, सीमेंट में से स्टोन्स अलग करने के लिए
वो एक सीव बनाई होती है उन्होंने लोहे की, वो जमीन में गाड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं ऐसे करके उसमें से पास करते हैं सीमेंट, और स्टोन्स जो हैं वो इधर रह जाते हैं, सीमेंट उसमें से पास आउट हो जाता है, राइट? दिस इज सीविंग। इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें कोई डाउट? देन कम्स सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड बच्चे, इन दिस केस दो केसेस अराइज होते हैं, इधर तो वो सॉल्युबल होगा और वो इनसॉल्युबल होगा। If it is soluble, then the method used is evaporation. Evaporation. Yes, Savya? हाँ जी बेटे। मैम एक बार हैंड पिकिंग की कंडीशंस रिपीट कर दो। किसकी? हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग की मैं कर देती हूँ बच्चे। हैंड पिकिंग की कंडीशंस दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं। नंबर 1, components should be visible to the eyes. Number 2, they should be in different size. Number 3, they should be different in color. Number 4, they should be small in quantity. Right? So chalo come back to this. Solid in liquid, if component is solid and liquid, अगर soluble है तो method used is evaporation. For example, salt is mixed in water, sugar is mixed in water. तो अगर हमें उसको सेपरेट करना है, सॉल्युबल है ना ये, अगर सेपरेट करना है, व्हाट वी विल डू, वी विल हीट इट, evaporation of water will take place, all of the water will be evaporated, and what is left behind? Salt and sugar. In the same way you can see sea water, it is full of salt, right? तो हम जो salt लेते हैं that is obtained from sea water only, right? So this sea water, it is collected in big pits that are called lagoons, right? So क्या होता है, पानी उसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, sea water, the water gets evaporated due to the heat of the sun, and what is left behind? Only salt, right? This is the method of evaporation. Then now the second case arises. If the mixture is insoluble, solid is not getting dissolved in liquid, then there are 4 methods: sedimentation, decantation, filtration, and churning. Right? So क्या है sedimentation, decantation? Sedimentation, like this is insoluble mixture, muddy water. Mud is not soluble in water, right? So what will happen? We have to keep this mixture undisturbed for some time. कुछ घंटों के लिए हमें इस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड रखना होगा। जब हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं, व्हाट हैपन, द हैवियर पार्टिकल्स, क्या है हैवियर पार्टिकल्स? मड, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड वाटर विल बी सीन अप. मड, राइट? सो और इसको हम सेडिमेंट भी बोलते हैं, जो नीचे आ गया, दैट इज सेडिमेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन, राइट? अब अगर आप अपने घर से, किचन से अगर कोई एग्जांपल हो, आपकी मम्मा ने राइस धो के रखे हैं, तो व्हाट विल हैपन, पानी ऊपर आ जाता है, राइस सारे हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं.
दाल भिगो के रखी है, पानी ऊपर आ जाता है, दाल नीचे बैठ जाती है, दिस इज सेडिमेंटेशन, राइट? बट this process of sedimentation, it takes lot of time. As I told you, we have to keep it undisturbed for few hours. So this sedimentation, it takes lot of time. To fasten the rate of sedimentation, we have to do another process, that is loading. हम loading कर सकते हैं. What is loading? What is loading? Loading is a process in which we add potash alum to this mixture, right? So what will happen? All the heavier impurities, फटाफट they will stick to potash alum. Potash alum heavy हो जाएगी and it will come down fast. तो ये फटाफट से नीचे आके बैठ जाएगी ऐसे, साथ में ये impurities. राइट ये सारा काम जल्दी हो जाएगा. नाउ दिस मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन और टू स्पीड अप द सेडिमेंटेशन, दिस इज नोन एज लोडिंग, राइट? इज दैट क्लियर? अब लोडिंग नेचर में भी होती है. हाउ? यू सी इन द एयर देयर आर सो मेनी डस्ट पार्टिकल्स, राइट? वो नीचे नहीं आ रहे क्योंकि वो इतने हैवी नहीं है कि वो जल्दी आ पाए, देर से आते हैं. सो व्हाट हैपन, जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, तो वो बारिश के पानी के साथ मिक्स होके फटाफट से और हैवी होके नीचे आ जाते हैं. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लोडिंग, राइट? इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें कोई डाउट? ओके. अब हमारे पास ये सेडिमेंट और वाटर तो आ गए, अब हमने इनको सेपरेट आउट करना है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन मोर बीकर. ये वाला जो बीकर है, इसको हमने टिल्ट करना है. सेडिमेंट्स को बिना छेड़े जेंटली हमने इसमें से वाटर पोर कर देना है, ये ऊपर वाला पानी, राइट? दिस इज नोन एज डिकेंटेशन. अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, किचन में मम्मा ने चावल भिगो के रखे हुए हैं, सारे चावल नीचे सेटल हो गए, पानी ऊपर आ गया, बट अब हमें वो पानी नहीं चाहिए. व्हाट मम्मा विल डू, वो पानी को धीरे से ड्रेन कर देते हैं और चावल या दाल पीछे रह जाती है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकेंटेशन, राइट? इज दैट क्लियर? सेडिमेंट्स छेड़ने नहीं है, सेडिमेंट्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब. इज दैट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट आ गई फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन क्या होती है? सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन तो हो गई, बट दिस इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेथड. कोई ज्यादा बढ़िया मेथड नहीं है ये. इससे बेटर मेथड है फिल्ट्रेशन का. व्हाट इज फिल्ट्रेशन? इन दिस अ फनल इज यूज्ड. फनल को यूज किया जाता है, right? In this funnel, filter paper is kept. A cone of filter paper is made and it is kept in the funnel. What is filter paper? It is a special kind of paper with millions of holes in it that allow only smaller particles to pass through it. So filter paper रखने के बाद we have to pour the muddy water. ये muddy water है. When we pour the muddy water on the filter paper, the mud or the insoluble particle
it will remain on it and only the water will pass out. Right? Is that clear? इसमें this pure water is known as filtrate. This insoluble impurity that gets collected on the filter paper is known as residue. This is funnel. This is filter paper. Right? इसकी अगर आपको घर में एग्जांपल चाहिए to separate the tea from tea leaves, आप घर में चाय में से चाय पत्ती अलग करते हो तो आप इसी मेथड से यूज करते हो. स्ट्रेनर लिया आपने, उसमें से चाय डाली, ओनली द लिक्विड टी विल पास आउट, फिल्ट्रेट, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी. घर में चीज बनाते हो, चीज, कॉटेज चीज जो होता है, क्या करते हो उसमें? जब दूध फाड़ते हो, चीज बनाते हो तो चीज अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है. राइट? उसको फिर आपने कभी देखा मम्मा क्या करती है? मलमल का एक कपड़ा लेती है, पतला सा कॉटन का कपड़ा, उसके ऊपर डाल देती है, सारा पानी उसमें से निकल जाता है एंड ऊपर क्या रह जाता है? चीज. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन. राइट? इज देयर एनी डाउट इन दिस? इज देयर एनी डाउट? बनाओ डायग्राम फटाफट. मेक द डायग्राम्स, हरी अप, फिर आगे चर्निंग करवाऊं. अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. हरी अप, हरी अप, हरी अप. ये देखो सीधे बनाओ, बिकॉज व्हाट इज दिस? नंबर कटना नहीं इसके. नो लेबलिंग. सेडिमेंटेशन की अगर डायग्राम आती है तो ये लोडिंग नहीं बनानी है आपने. अगर लोडिंग पूछी जाती है तो बनानी है. इज दैट क्लियर? सेडिमेंटेशन की डायग्राम में आपने ये लोडिंग शो नहीं करनी. एक और बात, जब भी आपको सेपरेशन कोई आती है पेपर में, तो जिसके साथ डायग्राम है, चाहे बोला गया है चाहे नहीं बोला गया है, ड्रॉ द डायग्राम. राइट? किसी भी क्वेश्चन में, पूरी बुक में जिसके साथ डायग्राम है, चाहे आपको बोला गया है चाहे नहीं, try to explain all the answers with the help of diagram. Right? Hurry up. Hurry up everybody. हाँ जी साव्या. मैम जो भी आपने डायग्राम ड्रॉ की है उसका हमने स्टैंड बनाना है उसके साथ. बना लो बेटा, नो प्रॉब्लम, बनाओ, नो प्रॉब्लम. ठीक है? अगर स्टैंड बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो आप, नॉट अ बिग इश्यू. Wear the mask. मास्क नहीं रिमूव करना 1 मिनट के लिए भी.
हरी अप एवरीबॉडी। बेटा फिल्ट्रेशन की और भी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घरों में, एक तो मैंने आपको वो बता दिया मसलिन क्लॉथ, जिससे आपकी मम्मा चीज सेपरेट आउट करती है। दूसरा है जैसे कि आपके घरों में वो मेटालिक फिल्टर्स लगे होते हैं, जालियां लगी होती हैं, आपने देखे हैं बाथरूम में जो जाली लगी होती है मेटल की, उसमें क्या होता है, सिर्फ उसमें होल होते हैं छोटे छोटे, उसमें से सिर्फ पानी पास करता है, कोई बाल, कोई कपड़ा, कोई और कोई चीज वो उसमें से पास नहीं कर पाती, राइट। ये भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसके अलावा आपके घरों में आपके आरओ है, उसमें भी वाटर फिल्टर होता है, राइट। इज दैट क्लियर? दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ फिल्ट्रेशन। Hurry up everybody, draw it. इसके बाद नेक्स्ट आ गया एक और मेथड है ये इनसॉल्यूबल का, चर्निंग। चर्निंग क्या होती है? रोटेटिंग द मिक्सचर एट अ वेरी हाई स्पीड, मिक्सचर को बड़ी हाई स्पीड पे रोटेट करना। एज अ रिजल्ट heavier particles they will get separated from the lighter particles, right? heavier particles अलग हो जाते हैं, lighter अलग हो जाते हैं। जैसे कि मलाई में से मक्खन निकालते हैं मम्मा, दैट इज एग्जांपल ऑफ चर्निंग। ओके, टर्निंग और सेंट्रीफ्यूजेशन भी बोलते हैं हम। लिखा नहीं हुआ आपने पहले? चर्निंग, churning is a method in which lighter components are separated from heavier components by rotating the mixture at a very high speed। बहुत हाई स्पीड पे उसको चर्निंग करते हैं। हाँ जी बोलिए गौरिश। मैम चर्निंग को मैम और क्या बोलते थे? सेंट्रीफ्यूजेशन। राइट, और कोई डाउट? Hurry up everybody, if you want to ask you can ask right now। Next topic which is left is liquid in liquid, right? उसमें miscible, immiscible, both the cases will be there, right? That we will start tomorrow। टाइम इज ओवर नाउ, डायग्राम ड्रॉ कर लो, अभी भी ड्रॉ नहीं हुए सबके, दिख रही है मुझे। प्लीज लेबलिंग करो सारंग साथ साथ, ओके। राज आ रहे हैं ना, आप भी लेबलिंग करो।
हाँ जी जैस्मीन, वेयर इज योर अटेंशन? Okay students, let's meet tomorrow.